क्या आपको पता है इंडिया occupies 2.4% of the total land area of the world but supports 16.7% of the world's population. If we include entire Bangladesh's population, entire United States population, entire Indonesia, Nigeria, Pakistan, and even Brazil, the total population would still be less than India's actual population, which is around 1.38 billion. क्या आपको नहीं लगता there are way too many people living in too little spaces fighting for too little resources? Hello everyone, my name is Nisha and today we'll be discussing about a very important issue which needs urgent attention and that is overpopulation. इंडिया के हर गली में, हर कोने में there is a clear display of increasing population. चाहे वो मेट्रो हो, बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, शॉपिंग मॉल्स हो या किसी तरीके की सोशल या रिलीजियस गैदरिंग्स हो. We see all these places are overcrowded at any time of the day. This is a clear indication of overpopulation in our country. Our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, had urged the nation to understand the importance of birth control during his last Independence Day speech from the Red Fort. उन्होंने इस बात को emphasize करते हुए कहा that population explosion has and will create various problems for the coming generation. हमारे यहाँ तो जो पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स हैं वो अपने फायदे के लिए इस बढ़ती हुई जनसंख्या को एक संपत्ति करार देते हैं because more population means more uneducated people means more votes they can buy. Yes, we know that human resource is the biggest asset but it is becoming a liability to our nation. हम सबको पता है कि चाइना दुनिया का सबसे पॉपुलस देश है. But according to a new United Nations report, India is set to overtake China in less than a decade. वैसे देखा जाए तो China and India currently account for 37% of the entire global population of roughly 7.7 billion people. With China currently home to about 1.4 billion people and India to 1.3 billion. लेकिन ये बात याद रखिएगा कि चाइना इंडिया से 2.9 times बड़ा है. In spite of the fact that the population policies, family planning and welfare programs undertaken by the government have led to a continuous decrease in the fertility rate, still there are states like Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and Madhya Pradesh with the fertility rate above 3 births per woman. और सिर्फ इतना ही नहीं, according to the government's latest population projections predict a 30% growth for Uttar Pradesh and 42% for Bihar. Together, the total population of the two states will be 40.6 crores by 2036. अब देखते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है. मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण तो है कि मृत्यु दर बहुत कम है. ये ऑब्वियस है कि अगर मृत्यु दर कम है बर्थ रेट से तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा. लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम मृत्यु दर तो नहीं बढ़ा सकते, है ना? तो हमें किसी ना किसी तरीके से बर्थ रेट को कम करना ही पड़ेगा अगर हम हमारे पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं तो. और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है. सबसे पहला तो है अर्ली मैरिज. Even though legally the marriageable age of a girl is 18 years, the concept of early marriage still prevails. And getting married at a young age prolongs the childbearing age. मुझे लगता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने का दूसरा रीज़न है poverty and illiteracy. क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी गरीब फैमिलीज़ हैं जिनको लगता है कि अगर परिवार में ज़्यादा लोग होंगे मतलब कमाने वाले हाथ भी ज़्यादा होंगे. कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि ज्यादा बच्चे होंगे मतलब उनके लिए बुढ़ापे की लाठी बन पाएंगे. लेकिन मेरा मानना ये है कि ज्यादा बच्चे होने का मतलब ज्यादा कमाई नहीं बल्कि ज्यादा खर्च ही है. क्योंकि एक बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत ही कमाना तो शुरू नहीं करेगा, तो उस पे पहले कुछ खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और सबको अच्छी शिक्षा भी आप प्रोवाइड नहीं करवा पाओगे क्योंकि फैमिली गरीब है.
तो मेरा ये मानना है कि आप ज़्यादा बच्चे नहीं, सिर्फ 2 बच्चे ही पैदा करो और उनको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करो, तब वो ज़रूर आपके लिए बुढ़ापे की लाठी बन पाएंगे। एक और चीज़, स्ट्रेंज बट ट्रू, India still lag behind the usage of contraceptives and birth control methods. कुछ क्षेत्र के लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ होती भी है, और जिनको पता है वो इस बारे में बात करना एक गुनाह मानते हैं। अगर हम रूरल एरियाज के बारे में बात करें तो वहाँ पे औरतों को इतनी छूट ही नहीं दी जाती कि वो इस बारे में सवाल पूछ सके, या वो खुद भी इस बारे में सवाल करने से कतराती हैं। किसी से छोड़िए, वो अपने हस्बैंड से इस बारे में कोई सवाल नहीं कर सकती। इलिटरेसी thus is another cause of overpopulation. वैसे तो लिटरेसी से हमारे देश की काफ़ी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे टैप करके उसको देख सकते हैं, या फिर आप मेरे लेट्स मेक आवर कंट्री बेटर नाम की प्लेलिस्ट में जाके भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है द एज ओल्ड कल्चरल नॉर्म। सबको पता है कि इंडिया में सन्स आर द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिलीज। इस एज ओल्ड थॉट की वजह से पेरेंट्स पे इतना प्रेशर बन जाता है कि जब तक एक बेबी बॉय पैदा नहीं होता तब तक दे कांट स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग मोर। वैसे तो ऐसे और ना जाने कितने रीजंस हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। Even after celebrating 73 years of independence, the scenario of our country is not good due to overpopulation. There are so many impacts such as unemployment, manpower distribution. जब हम manpower distribution की बात करते हैं, मतलब the number of jobless people is on the rise due to economic depression and slow development and expansion, pressure on the infrastructure, resource utilization, मतलब land areas, water resources, forests are overexploited, and there is also a scarcity of resources, unequitable income distribution, and a lot many other impacts. अक्सर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को कुछ मेजर स्टेप्स उठाने चाहिए। ऑफ कोर्स उठाने चाहिए। They should initiate a bold population policy so that the economic growth of the country can keep pace with the demands of a growing population. लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट को बोलने से तो नहीं होगा ना, हमें भी अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। We also should take initiative to educate people. Now, we as in the schools, the influencers, and of course, we as an individual. अगर हम स्कूल्स की बात करें तो दे कैन स्टार्ट सेक्स एजुकेशन फ्रॉम अ वेरी टेंडर एज इटसेल्फ। और अगर हम खुद की बात करें तो वी कैन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द यूसेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड बर्थ कंट्रोल मेथड्स। अब आप बोलोगे कि हम कैसे कर सकते हैं? आई विल टेल यू। जब भी आप किसी भी तरीके के इवेंट में या सोशल गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट करते हो तो आप अपने परफॉर्मेंसेस के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हो। ऑल्सो एनकरेजिंग स्टरलाइजेशन एंड स्पेसिंग बर्थ, women empowerment, distribution of contraceptives amongst the poor, and the most important is to promote literacy. All of this can play a major role in controlling the population. अब जब हमने इतनी सारी बात कर ली, अब मैं आशा करती हूँ कि ये जानने के बाद कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक्चुअली कुछ करेंगे। और अगर आपको अपने साथ और लोगों को जोड़ना है तो आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट टू मेक आवर कंट्री अ बेटर प्लेस। जय हिंद।